بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل زاہد سیال ویلاگز پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج 20 مارچ ہے، 2022 اتوار کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کہ آپ چاہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ صدارتی ریفرنس جو حکومت بھیجنے جا رہی ہے کل سوموار کے دن، جو سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا، اس صدارتی ریفرنس کے اندر جو وزن ہے، جو اس کا ویٹ ہے، وہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ، اس نئی خبر کو سامنے لانے کے بعد، یہ نئی خبر سامنے کون لایا ہے؟ یہ قسمت خان زمری صاحب سامنے لائے ہیں۔ صدیق جان جو بہت بڑے یوٹیوبر اور بہت بڑے ولاگر ہیں اور میرے پسندیدہ صحافیوں میں سے ایک ہیں، یہ نوجوان صحافی بہت محنت کرتا ہے اور بہت زبردست کام کرتا ہے۔ صدیق جان بھائی نے اس پہ اپنا ولاگ کیا ہے، میں سارا کریڈٹ ان کو دوں گا، اور ان کے ریسرچر قسمت خان زمری صاحب، اور قسمت خان زمری صاحب وہ ریسرچر ہیں جو پاکستان میں جو ٹاپ کے 2-3 ریسرچر ہیں ان میں سے ایک قسمت خان زمری صاحب ہیں۔ قسمت خان زمری صاحب نے اپنی یہ سٹوری سامنے بلائے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بھی ولاگ کیا ہے، اور اس پہ اب بات بھی ہونے لگی ہے۔ یہ سٹوری کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو صدارتی ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ بہت اہم سوالات پہ مبنی ہے، اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آ جانے کے بعد، اور میں پہلے ایک ولاگ کر چکا ہوں کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں، سینئر قانون دان، اور بھی بہت سارے قانون دان اب یہی بات کر رہے ہیں کہ قریب ترین جو نظیر ہے، قریب ترین جو مثال ہے، وہ پاناما کیس کی ہے، اور پاناما کیس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ممبران جو ہیں یہ تاحیات نائل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں قسمت خان زمری صاحب کی سٹوری کی طرف۔ یہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، اسے غلام اسحاق خان صاحب نے، جو اس وقت صدر پاکستان سے، انہوں نے اسے برخاست کر دیا تھا، اسمبلی کو توڑ دیا تھا، حکومت توڑ دی گئی تھی، اور بے نظیر صاحبہ کی پارٹی اس توڑنے کے عمل کو سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو سنا، جن ججوں نے، ان کے اندر موجودہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، نون لیگ کے بہت سرگرم کارکن ہیں، ان کے دادا جان تھے، اور شریف خاندان کے بڑے منظور نظر تھے رفیق تارڑ صاحب، جنہیں بعد میں نوازا بھی گیا اور انہیں صدر پاکستان بنایا گیا۔ رفیق تارڑ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور جسٹس قیوم صاحب جو نہ اتنے بدنام ہیں، بدنام زمانہ جسٹس قیوم صاحب، ملک قیوم صاحب، جو بعد میں آج تک پاکستان نہیں آ سکے، انہوں نے فون کالز کے اوپر فیصلے دیے تھے۔ یہ فون کالز کے اوپر فیصلے لیتے ہیں ججز سے، ایسے ایسے انہوں نے مہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ ان سے یہ فون کالز پہ فیصلے لیتے ہیں۔ اب تو خیر صورتحال کافی مختلف ہے، ابھی بھی انفلوئنس، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فیصلے ایسے آئے جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن اب مجموعی طور پہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ بہرحال بے نظیر صاحبہ نے جب اس کو چیلنج کروایا، اور جب وہ توڑا گیا تھا، جو ان کی حکومت کو، ان کی اسمبلی کو جب توڑا گیا تھا، اور اسے جب چیلنج کیا گیا، تو اس کا سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو، لاہور کورٹ میں جو فیصلہ ان کے خلاف ہے، اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ بیٹھا وہ 12 ججز پہ مشتمل تھا، اور میری معلومات کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی کل تعداد بھی شاید تقریباً اتنی ہی تھی۔ تو اس 12 ججز کے بینچ میں سے 10 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور جب یہ فیصلہ اب صدارتی ریفرنس کے اندر پیش کیا جائے گا تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی محسوس ہوگی۔ اس فیصلے کے اندر جو جسٹس شامل تھے، جسٹس صاحبان، ان کے نام سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جو 12 ججز تھے جنہوں نے یہ کیس سنا، ان میں چیف جسٹس افضل محمد ضلع صاحب، جسٹس شفیع الرحمان صاحب، جسٹس نعیم حسن شاہ صاحب، اور جسٹس سعد مسعود جان صاحب، جسٹس نعیم الدین صاحب، جسٹس عبد القدیر چودھری صاحب، جسٹس میاں اجمل صاحب، اور جسٹس رستم سدوا صاحب، محمد افضل لون صاحب، اور جسٹس ولی محمد خان صاحب، جسٹس عبد الشکور اسلام صاحب، اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے۔
वही जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो बाद में नवाज शरीफ साहब को बहुत चुनते थे। इन 12 जजेस में से 10 जजेस ने जो इत्तेफाक के साथ फैसला किया, जो फैसला लिखा, वो जस्टिस शफी रहमान साहब ने लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा, ये वो दलील थी, यानी कोर्ट के अंदर ये पीपल्स पार्टी ने ये दलील पेश की जो वो शुरू में लिख रहे हैं, और उसके बाद अपना वो आगे उस पर अपनी राय देंगे, वो राय मैं आपके सामने रखूंगा, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपके सामने रखूंगा। वो लिखते हैं, जस्टिस साहब लिखते हैं कि एक अमूमी दलील है कि जो यहाँ पर पेश की जा रही है कि मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हार्स ट्रेडिंग, अकरबा परवरी, करप्शन और चंद आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी जैसा कि मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास न बुलाना, ये वो चीज़ें हैं जो माजी में भी होती रही हैं और कौमी असम्बली की तहलील के बाद भी हो रही हैं। यानी बेनज़ीर साहबा का जो वहाँ पे उनकी पार्टी का या जो वकील वहाँ पे मौजूद था, उसने ये प्ली लेने की कोशिश की। इसलिए इन तमाम अवामिल की बुनियाद पर कौमी असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। जज साहब लिखते हैं कि ये दलील इसलिए गालिब नहीं आ सकती कि एक बार बुराई का पता चल जाए, वो इस डिफेक्शन क्लास को, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने को बुराई कह रहे हैं, बुराई लिख रहे हैं। एक बार बुराई का पता चल जाए तो आईनी ढांचे के अंदर उसको दुरुस्त करने के इकदाम उठाए जाने चाहिए, और ये इकदाम बाद में उठाए गए, जिसे अब 63A कहा जाता है। ये आइन के अंदर ये शिक शामिल की गई। उसके बाद जज साहब लिखते हैं कि मुंतखब अरकान की डिफेक्शन में कई बुराइयां हैं। यानी अगर कोई मुंतखब नुमाइंदा एक पार्टी से वोट लेकर आता है और उसे छोड़कर वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसमें कई बुराइयां हैं कि अगर कोई रुकन किसी मंशूर सियासी पार्टी की वाबस्तगी या किसी मफाद आमा के इशू पर अपने मखसूस स्टैंड के बायस मुंतखब हुआ है, तो ऐसे रुकन का डिफेक्शन का अमल, यानी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का जो उसका अमल है, उस पर किए गए अवाम के एतमाद की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। ये जो राजा रियाज साहब हैं, ये जो जितने बिकाऊ हैं, ये जितने ज़मीर फरोश हैं, जो खुद को बेचने की जिन्होंने कोशिश की है, इन यानी ये लोग जो डिफेक्शन करते हैं, ये उस अवाम के किए गए एतमाद की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अगर किसी रुकन असम्बली का ज़मीर उससे डिफेक्शन के अमल पर उकसाता है, जैसे ये कहते हैं कि हमारा ज़मीर जाग गया है, तो जैसे आप लिखते हैं फैसले के अंदर, तो उसके पास मौजूद वाहिद रास्ता ये है कि वो इस्तीफ़ा दे। जैसा कि वो एक रुकन ने जो राजा रियाज साहब, एक कारकुन ने जो राजा रियाज साहब को कॉल की है, मुबैना तौर पे जो ऑडियो लीक कॉल आई है, उसमें उन्होंने कहा कि राजा साहब, अगर आप में ज़रा सी भी शर्म और हया और गैरत होती तो आप पहले इस्तीफ़ा देते, इस्तीफ़ा देकर दूसरी पार्टी से टिकट लेते और उस पर इलेक्शन लड़ते। हमारे ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं, हम जो आपके कारकुनान थे, लोग हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं, लोग हमें जो है ना वो ताने दे रहे हैं। तो जज साहब लिखते हैं कि इसके पास मौजूद वाहिद रास्ता ये है कि वो इस्तीफ़ा दे और अपनी नुमाइंदगी के उस किरदार को उतार दे जिसे वो मजीद पेश नहीं कर रहा होता, और दोबारा इलेक्शन लड़े। इससे वो काबिल इज्जत बनेगा और सियासत साफ होगी और असूली क़यादत का ज़ुहूर मुमकिन हो सकेगा। असूली क़यादत तभी आएगी जब वो असूली तौर पर अगर ये समझ रहते हैं कि हमारा ज़मीर को अब कोई पिख लग गई है और हमारा ज़मीर जाग गया है, तो पहले वो इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा देकर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं नहीं कह रहा कि वो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा देकर किसी दूसरी पार्टी से टिकट लें और उस टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें। जज साहब लिखते हैं कि पार्टी से बेवफाई करने वाले रुकन के इस धोखे से, ये धोखेबाज हैं, ये याद रखें, ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच लिख रहा है कि रुकन के इस धोखे से सियासी अमल बेबस रहता है, क्योंकि वफादारी बदलने वाले रुकन के वोटर को उस रुकन को मुस्तरद करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यानी अगर एक रुकन आज राजा रियाज साहब या दीगर आन जो हैं, नवाब शेर वसीर साहब हैं या दीगर जो भी हैं, अगर वो आज उस वोटर के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, उसके एतमाद को तोड़ते हैं और डिफेक्शन करते हैं, उस पार्टी को छोड़कर जिसके नाम पर उसे वोट पड़ा होता है, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उस वोटर के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी जो उसे मुस्तरद करना चाहता है? वो साल 1.5 साल इंतजार करेगा, या 2 साल असम्बलियों के रहते हैं, या 3 रहते हैं, या 4 रहते हैं, तो वो इतना अरसा इंतजार करेगा, और उस इंतजार के बाद जबकि इस इंतजार के दौरान ये लिख रहे हैं जज साहब, डिफेक्शन करने वाला रुकन फलता फूलता रहता है, उसके खाबे लगे रहते हैं, वो खाता पीता रहता है, वो तनख्वाहें लेता है, वो मराहत लेता है, उसका पेट्रोल चलता रहता है, उसका डीजल चलता रहता है, उसको सारी मराहत मिलती रहती हैं, लेकिन वोटर बेचारा जिसने उसको वोट देकर असेंबली में भेजा था, वो बेबस रहता है और वो सारे फायदे उठाता रहता है, वो
सारे फ़वाइद जो हैं वहाँ से जो उसे मिल रहे होते हैं वो सारे उठाता रहता है। करम इलाही बंदियाल साहब सॉरी करम इलाही गोंदल साहब एक हैं रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े अहम ओहदों पे वो मौजूद रहे हैं और अब भी हैं। उन्होंने करम इलाही गोंदल साहब ने एक ट्वीट किया था कल और उनके उस ट्वीट को रीट्वीट किया सिद्दीक जान साहब ने बल्कि को ट्वीट किया और उसके ऊपर उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। उसमें करम इलाही गोंदल साहब ने यही बात लिखी थी कि देखें, ये तो अदम एतमाद कर देंगे खान साहब के ऊपर। ये तो कहते हैं हमें एतमाद नहीं रहा, हमारा ज़मीर जाग गया है। तो उस वोटर का ज़मीर, उस वोटर का एतमाद जो है वो किधर जाएगा? वो वोटर जिसने उसको असेंबली के अंदर भेजा था, उसका एतमाद और उसका ज़मीर किधर जाएगा? उस वोटर से भी तो कोई पूछे उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, जिसने इसे वोट देकर असेंबली में भेजा था, इस काबिल समझा था कि तुम्हें वोट दे रहा हूँ, तुम असेंबली में जाओ। उस वोटर का क्या बनेगा? जज साहब लिखते हैं मजीद इसी फैसले के अंदर लिखते हैं कि और रियासत ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। एक मुंतखब नुमाइंदे ने जो अपने इकरार शुदा मकसद अपने इलेक्टोरेट जो उसे चुनते हैं अपनी पार्टी और मैंडेट से डिफेक्ट करता है, वो नुमाइंदगी के किरदार को तबाह करता है। यानी उसे जो किरदार अवाम ने दिया होता है उसको वो तबाह कर देता है। वो अपने मैंडेट शुदा आइनी नुस्खे पर रियासत के इख्तियारात और पावर में हिस्सा नहीं ले सकता, हत्ता के खालिसतन सेकुलर मेयार के मुताबिक। यानी ये तो इस्लामी रियासत है, ये तो पाकिस्तान तो इस्लामी रियासत है, हत्ता कि सेकुलर मेयार के मुताबिक ऐसी डिफेक्शन का सामना और ऐसी डिफेक्शन की बुनियाद पर हुकूमत को चलाने के जो जमहूरी तरीके हैं, ये उनका तमस्खर उड़ाने के सिवा कुछ नहीं है। ये फैसला दिया था उस वक्त के 10 रुकनी बेंच ने। 12 रुकनी बेंच था, उसमें से 10 रुकनी जजेस का जो एक गिरोह था, गिरोह कह रहे हैं, ये जमात कह लें, उन 10 अरकान ने उन 10 जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये फैसला लिखा था और इस फैसले की रूह से कोई भी ऐसा पार्टी कारकुन जिसे ये मालूम होता है, जो ये समझता है कि मैं अब उस पार्टी के उस नज़रिए के साथ या उस पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो वो क्या करेगा? वो ये करे कि वो पहले जाकर इस्तीफ़ा दे अपना और दोबारा किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़के वो फिर उस पार्टी की नुमाइंदगी करे और असेंबली में आ जाए। तो ये वो फैसला है जो 12 रुकनी जज साहबान के बेंच ने लिखा था और इसमें 2 इख्तिलाफी नोट भी आए थे। लेकिन इस फैसले को जब आइन के आर्टिकल 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा, तो मेरे ख्याल में, मेरे तजिए के मुताबिक मेरी राय ये है कि 90% सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये आएगा कि आइन की रूह यही है। क्योंकि एक आदमी ने घर का दरवाज़ा लगाया हुआ है, वो दरवाज़ा उसने इसलिए लगाया है कि कोई मेरे घर के अंदर दाखिल ना हो। एक आदमी आता है, वो उस दरवाजे को तोड़ता है, ऐलान करता है कि मैं इस दरवाजे को तोड़ के इसके अंदर जा रहा हूँ और मैं इस दरवाजे के अंदर दाखिल होऊंगा और जो इसने ये रोक लगाई है मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। तो क्या उस घर का मालिक या जो भी कोई इंतजामी कानूनी ढांचा हो जैसा कि पुलिस है, तो क्या वो इस इंतजार में बैठी रहेगी सामने कि पहले ये इसको तोड़े, इसके अंदर जाए, फिर उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट से 90% चांसेस ये हैं कि इन अरकान के खिलाफ जो ऐलान कर चुके हैं, जो एक तो था खुफिया तरीके से, उसका तो बाद में पता चलता है, उसका फिर वही प्रोसेस है कि उसके बाद स्पीकर असेंबली को लिखा जाएगा और स्पीकर असेंबली जो है वो रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन में और वो फिर नायल होता फिरेगा। लेकिन इस वक्त जब ये ऐलान कर चुके हैं तो 90% चांसेस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि ऐसे लोगों को नायल किया जा सकता है और ये ताहयात नायल होंगे सुप्रीम कोर्ट की उस करीब तरीन नज़ीर के मुताबिक। अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।